So the submandibular region, it is basically the region which is below and under the cover of the body of the mandible. As you can see, this is a it is a mandible. When we see from the inferior side, जब हम इसको नीचे से देखेंगे, so you can see the line, this line, this is your mylohyoid line. इस mylohyoid line के superiorly जो ये fossa present है यहाँ पे depression, this is your sublingual fossa, and the fossa present below this, inferior to it, this is submandibular fossa. ठीक है. So mylohyoid line के according it is been defined, mylohyoid line के नीचे जो area present है आपका, that is your submandibular region. Basically it extends upwards up to the mylohyoid line and below to the hyoid bone. तो mylohyoid line, mandible के mylohyoid line से लेके hyoid bone तक जो region present है, that is your submandibular region. Now when we'll see first, अगर हम submandibular region को डिसेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट होगा. फर्स्ट इज़ योर स्किन. स्किन के बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया में बेसिकली व्हाट इज़ प्रेजेंट देयर, प्लैटिज्मा. प्लैटिज्मा इज प्रेजेंट इन योर सुपरफिशियल फेशिया. आप प्लैटिज्मा को जब रिमूव करेंगे, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जब आप प्लैटिज्मा को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दो नर्व्स बेसिकली जो दिखते हैं. फर्स्ट इज़ योर मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. यू कैन रिमेंबर, आपको याद है जब फेशियल नर्व हमने डिस्कस की थी तो उसकी 5 ब्रांचेस थी. तो जो 4th ब्रांच थी आपकी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये आपके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा ऑफ द सबमैंडिबुलर रीजन, एज यू कैन सी. और दूसरा नर्व जो होगा दैट इज़ योर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ये पोस्टीरियरली बिल्कुल आपके ईयर जो आपका ऑरिकुलर रीजन है वहाँ पे दिखेगा ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड दी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो दिस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दी सुपरफिशियल पार्ट. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया में आपका होगा प्लेटिज्मा एंड आपके दो नर्व्स, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड दी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी सबमैंडिबुलर रीजन. जो आपके डीप स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जैसे ही आपका ये सुपरफिशियल पार्ट हुआ, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड योर 2 नर्व्स, आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे जितने भी डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आपके मसल्स होंगे, ग्लैंड्स हैं, आर्टरी, नर्व्स एंड अ गैंग्लियन. These structures are present in the deep structures. They are the structures present deep to the submandibular region. First is your muscles. Muscles में यहाँ basically 2 टाइप के muscles हैं. First is your suprahyoid muscle. What is suprahyoid muscle? The muscle which is present in the superior aspect of hyoid bone. That is your suprahyoid muscle. Basically 4 muscles are there which is included in the suprahyoid muscle. The digastric muscle, stylohyoid, mylohyoid and the geniohyoid. 4 muscles are there. This we are going to discuss later. Next is your extrinsic muscle of the tongue. Tongue में आपके पूरे सारे muscles पूरे discuss होंगे, आपके hyoglossus, styloglossus and the genioglossus. ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारे muscles आपके paired हैं right and left side के. ठीक. So these are your muscles which are present in the deep structure of submandibular region. Next is your glands. Basically 2 salivary glands are present in the submandibular region. It is your submandibular salivary gland and the sublingual salivary gland. There are 3 salivary glands present. First is the parotid, which is the largest one. Second is your submandibular. Third is your sublingual. So 2 salivary glands are present. This we are going to discuss in the today's lecture. Facial and the lingual arteries. These both arteries are going to be discussed in the blood vessels of head and neck region. The lingual, hypoglossal and glossopharyngeal nerve. 3 nerves. Lingual आपका trigeminal nerve का part है. Hypoglossal and glossopharyngeal. These 3 nerves will be discussed later according to their related topics.
Next is your submandibular ganglion. So in today's lecture we are going to discuss about the suprahyoid muscle, actually whole muscle, suprahyoid muscle, and the extrinsic muscle present in the submandibular region. Second is your submandibular and the sublingual glands and submandibular ganglion. So first we'll start the muscles of the submandibular region. The muscles of the submandibular region are arranged in 4 muscular plane, basically on the basis, ये सर्जिकल प्लेन्स हैं आपके सबमैंडिबुलर रीजन में. जिस तरीके से सारे आपके मसल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेन्स अकॉर्डिंग टू सर्जिकल प्लेन्स दे आर बीइंग डिवाइडेड इन 4 प्लेन्स. फर्स्ट इज योर फर्स्ट मस्कुलर प्लेन which includes or comprises the digastric and the stylohyoid muscle. 2 muscles in the first muscular plane, digastric and the stylohyoid. Second muscular plane, it is formed by the mylohyoid muscle. Only one muscle forms the second muscular plane. Third muscular plane, 3 muscles, geniohyoid, hyoglossus and the styloglossus. Fourth muscular plane includes the genioglossus and the superior, a part of superior constrictor of pharynx. ये हम pharynx में अलग से डिस्कस करेंगे इस मसल का. So एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप जहाँ पे भी मसल्स यू आर यूजिंग hyoid muscles, the suprahyoid muscles, whatever the structures are there, उनकी attachment के according उनके नाम है. Like if you are saying stylohyoid muscle, मतलब from styloid process to hyoid bone. If you are saying mylohyoid muscle, it is from the mylohyoid line of mandible to the hyoid bone. Next, where the muscles of the tongue, hyoglossus, from hyoid bone to tongue. The glossus word is used for tongue, and the styloglossus, the styloid process to the tongue. So, as it according to their attachments, the name has been given. Then first we'll discuss the first muscular plane, which includes the digastric and the stylohyoid muscle. ये हम लास्ट में रिवाइज करेंगे जो टेबल है. Now this is your first muscle, the digastric muscle. Digastric muscle में first is your, there are 2 parts of digastric muscle, anterior belly and posterior belly. As you can see in the diagram, जो आपकी anterior belly of digastric है उसका origin होगा digastric fossa of mandible. As you can see in this diagram, आपका जो first mandible वाला diagram था उसमें आप देख सकते हो बिल्कुल inferior में, in the anterior part of the mandible, inferior में there is the presence of digastric fossa. वहाँ से इसका origin होता है आपका anterior belly of digastric. And it gets inserted into the intermediate tendon which is present in the hyoid bone. ठीक है. Next is your posterior belly. Posterior belly of digastric, it starts from the mastoid notch of temporal bone. आपको mastoid process याद है, हमने attachments डिस्कस की थी स्कल में. तो mastoid process के inferiorly वहाँ पे attach होता है आपका posterior belly of digastric. Posterior belly of digastric origin कहाँ से है? mastoid notch of temporal bone, and it also is inserted into the intermediate tendon, and this intermediate tendon is present in the body of hyoid bone. So this is your digastric muscle. First is your anterior belly, second is your posterior belly. Okay, and now it's get attached to the intermediate tendon. अब डाइगैस्ट्रिक मसल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको देखना है जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है. एज यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड जो डायग्राम है, इट इज़ द रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? एज सच वाइवा और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इट इज़ रिलेटेड टू 3 nerves. Most important 3 nerves, 10th, 11th and 12th, the accessory nerve, vagus nerve and the hypoglossal nerve. 3 nerves are related to the posterior belly of digastric and the blood vessels. यहाँ पे जो आपके head and neck region के जो major blood vessels हैं, the internal carotid artery, external carotid artery and your internal jugular vein, ये
15 major blood vessels. They are related posteriorly deep to the posterior belly of digastric. अब जो पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है उसके सुपीरियरली पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और इन्फीरियरली ऑक्सीपिटल आर्टरी भी रिलेटेड होती है. सो रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. आपके बेसिक इसमें मेजर नर्व्स आएंगे 10th 11th एंड 12th नर्व एंड द ब्लड वेसल दे आर इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल जुगुलर वेन. ओके, so this is your digastric muscle. Next is your stylohyoid muscle. Stylohyoid muscle, as its name suggests, आपका क्या है, stylo and hyoid. Styloid मतलब स्टाइलो मतलब द स्टाइलॉइड प्रोसेस. आपके स्कल में जो शार्प एक बोनी प्रोजेक्शन था नियर योर स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, दैट वाज नोन एज योर स्टाइलॉइड प्रोसेस. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओरिजिन है इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से एंड इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द हायोइड बोन एंड द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द ग्रेटर कॉर्नो ऑफ द हायोइड बोन. ठीक है, सो दिस इज योर स्टाइलोहयोid मसल. Stylohyoid muscle and the digastric muscle, they form the first muscular plane. You can see the first muscular plane. It is formed by the stylohyoid and the digastric muscle. Next plane, the second muscular plane, it comprises only one muscle, that is your mylohyoid muscle. As you can see, उसके नाम से जैसे mylohyoid, its origin is from the mylohyoid line. हमने शुरू में देखा जो आपका मैंडिबल होता है उसके inferior, उसके जो interior aspect में a line is present which is known as your mylohyoid line. That line, वहाँ से origin होता है आपका mylohyoid line से आपका mylohyoid muscle का origin is. अब ये हमेशा ध्यान रखना, इसके दोनों साइड के जो मसल है पेयर, दे विल फ्यूज इन द फाइब्रस, इट फ्यूजेस इन द एज अ फाइब्रस रैफे इन मिडल एंड इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द हायोइड बोन. हायोइड बोन में जो बॉडी ऑफ हायोइड बोन है उसके लोअर पार्ट में जाके इसका इंसर्शन होता है. बोथ जो आपका फाइब्रस रैफे फॉर्म हुआ था दोनों मसल के फ्यूजन से, दोनों साइड्स के, वो और सारी मसल वैली वो जाके फ्यूज आपके इंसर्ट होगी हायोइड बोन में. सो दिस इज योर mylohyoid muscle. It forms the second muscular plane of the submandibular region. Third is formed by the gynoid muscle. 3 muscles are present in the third muscular plane. थर्ड मस्कुलर प्लेन में बेसिकली 3 मसल्स हैं. फर्स्ट इज योर जीनियोहाइड मसल. जीनियोहाइड मसल जैसे इसका नाम है, फर्स्ट पार्ट आपका ओरिजिन कहाँ से होगा, आपका जीनियल ट्यूबरकल से. सेम वे जो आपका सबलिंगुअल फोसा था, बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट में जो डाइगैस्ट्रिक फोसा था उसके थोड़ा सा सुपीरियरली 4 ट्यूबरकल्स आर प्रेजेंट. द सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल ऊपर के 2 पेयर में एंड नीचे के जो है वो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल. तो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ओरिजिन होगा आपका जीनियोहाइड मसल का एंड सेम वे इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन. ठीक है, सो दिस आर योर सुप्राहाइड मसल्स. थर्ड मस्कुलर प्लेन, 3 हमने 4 मस्कुलर प्लेन देखी. फर्स्ट मस्कुलर प्लेन में था आपका डाइगैस्ट्रिक मसल, आपका डाइगैस्ट्रिक मसल एंड योर डाइगैस्ट्रिक मसल एंड योर स्टाइलोहाइड मसल. सेकेंड मस्कुलर प्लेन में था आपका माइलोहाइड मसल. थर्ड मस्कुलर प्लेन में आएगा आपका फर्स्ट जीनियोहाइड मसल. सेकेंड इज योर स्टाइलोग्लॉसस मसल. स्टाइलोग्लॉसस मसल जैसे उसका नाम बता रहा है, फर्स्ट इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, सेम वे स्टाइलॉइड प्रोसेस से. स्टाइलॉइड प्रोसेस से इसका ओरिजिन होता है. इसका ओरिजिन एक्चुअली स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दी स्टाइलोहायोइड लिगामेंट दोनों से इसका ओरिजिन होगा एंड इट विल गेट इंसर्टेड इनटू होल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टंग. आपके टंग के लेटरल में, साइड ऑफ द टंग में, होल लेंथ में इसका इंसर्शन होगा. इसका जो इंसर्शन होता है यहाँ पे इट मिंगल्स और
यहाँ पे जो हायोग्लॉसस मसल का इंसर्शन है ये वहाँ पे मिक्सअप होते हैं इंसर्शन के पॉइंट पे होल लेंथ, क्योंकि साइड ऑफ दी पे ही आपकी स्टाइलोग्लॉसस मसल आएगा और यहीं पे आपके हायोग्लॉसस मसल का अटैचमेंट होता है। ठीक, सो आपका मस्कुलर प्लेन, थर्ड मस्कुलर प्लेन का मसल है आपका स्टाइलोग्लॉसस। नेक्स्ट इज योर हायोग्लॉसस मसल। या हायोग्लॉसस मसल, हायोग्लॉसस मसल जो होता है बेसिकली आपका हायोइड बोन से लेके टंग तक होगा। ओरिजिन इसका क्या है? फ्रॉम द सेम ओरिजिन, याद रखना, फ्रॉम द हायोइड बोन। नाउ हायोइड बोन के अपर सरफेस, ग्रेटर कॉर्नुआ और बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, दोनों से इसका ओरिजिन होगा एंड इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द टंग। टंग में बेसिकली ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ द साइड ऑफ टंग में जाके ये इंसर्ट होगा। नेक्स्ट डायग्राम इस स्लाइड में आपका जो सेकंड डायग्राम है, इट इज़ योर हाई, ये जो रिलेशन है आपका सुपरफिशियल, ये डायग्राम आपके सुपरफिशियल रिलेशन ऑफ द हायोग्लॉसस मसल का है। हाँ, अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दो मसल्स का रिलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ योर डाइगैस्ट्रिक मसल, उसका रिलेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट नर्व्स जो हेड एंड नेक रीजन के मेजर आपके नर्व्स और आर्टरीज हैं, वो सारे वेसल्स हैं, वो रिलेटेड है। सेकेंड इज़ योर हायोग्लॉसस, हायोग्लॉसस मसल का रिलेशन, दिस इज़ अलग से ही आपके टंग में डिस्कस होगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ सुपरफिशियली बताएंगे सब मैंडिबुलर रीजन में, बट यू शुड रिमेंबर आपके हायोग्लॉसस मसल का ये इम्पॉर्टेंट है आपका रिलेशंस जो है। एज यू कैन सी, फर्स्ट आपके जो सुपरफिशियल पार्ट में आपका जो सेकंड डायग्राम है इस स्लाइड में, इस डायग्राम में जो सेकंड डायग्राम में फर्स्ट देखो कि ऊपर में आपके जो मसल है दैट इज़ योर आपका स्टाइलोग्लॉसस मसल। आपके सेंटर में आपको जो स्ट्रेट वर्टिकल मसल, एक्चुअली ऑब्लिक जो मसल दिख रही है, दैट इज़ योर हायोग्लॉसस मसल। इस मसल के रिलेशन में सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट है? फर्स्ट इज योर टू नर्व्स आर प्रेजेंट, लिंगुअल नर्व एंड योर hypoglossal nerve. Two nerves are present. Related to lingual nerve, the submandibular ganglion are present, and your deep part of the submandibular gland and the submandibular duct. Most important, ये सारे structures आपके superficially related हैं, ठीक है? And the two veins related to the hypoglossal nerve. So the structures related superficial to the this your hyoglossus muscle is your lingual nerve, hypoglossal nerve, submandibular ganglion, submandibular duct and the deep part of submandibular gland. इसके डीप में बेसिकली आपके जो हायोग्लॉसस मसल के डीप में स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होते हैं, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट एंड द लिंगुअल आर्टरी. These three structures are related deep to the hypoglossus muscle. ये सारा आपका अच्छे से टंग में डिस्कस होगा. हायोग्लॉसस मसल का रिलेशन ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका जीनियोग्लॉसस मसल. द फोर्थ मस्कुलर प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू मसल्स, genioglossus muscle and the part of superior constrictor of pharynx. superior constrictor of pharynx है आपका pharynx में डिस्कस होगा. आपका जो genioglossus है, सेम वे ये जीनियल ट्यूबरकल, हमने जब जीनियोहाइड मसल देखा था तो हमने बोला था इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स, दो पेयर्स हैं वहाँ पे, ऊपर दो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, नीचे दो इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल. सो जो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल है, इंफीरियर से तो जीनियोहाइड मसल आया विच गेट अटैच टू द इंसर्टेड इनटू द हायोइड बोन. जो आपका सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल है, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ओरिजिन होगी जीनियोग्लॉसस मसल की, वहाँ से ओरिजिन होगी जीनियोग्लॉसस मसल की, एंड इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द टंग, टिप, बेस एंड बॉडी ऑफ द हायोइड. पूरा इट इज़ अ फैन शेप मसल और ये आपकी सेफ्टी मसल है आपकी टंग की. सो यू शुड रिमेंबर द जीनियोग्लॉसस मसल. आपका हायोग्लॉसस एंड जीनियोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस ऑल्सो, ये सारे मसल जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग है वो आपकी अलग से टंग में बहुत अच्छे से डिस्कस होगी.
उसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपका हायोग्लॉसस मसल का रिलेशन यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली. सो दिस आर योर 4 muscular planes. First muscular plane, 2 muscles, digastric and the stylohyoid. Second muscular plane, only 1 muscle, the mylohyoid muscle. Third muscular plane, the genohyoid, hyoglossus and the styloglossus. थर्ड मस्कुलर प्लेन है तो 3 मसल्स हैं यहाँ पे, जीनोहायड, हायोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस. लास्ट 4th मस्कुलर प्लेन में सिर्फ 2 मसल्स, जीनियोग्लॉसस एंड द पार्ट ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ pharynx. 2 1 3 2. फर्स्ट मस्कुलर प्लेन 2 muscles, second muscular plane only 1 muscle, third muscular plane 3 muscles and the fourth muscular plane 2 muscles. So 4 muscular planes. अब एक बार रिवाइज करते हैं. आपका डाइगैस्ट्रिक मसल था, फर्स्ट डाइगैस्ट्रिक मसल, 2 बेली, एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली. एंटीरियर बेली का ओरिजिन कहाँ से था? आपका डाइगैस्ट्रिक फोसा ऑफ द मैंडिबल. इंसर्शन कहाँ पे था? इंटरमीडिएट टेंडन. सेकेंड इज अ पोस्टीरियर बेली. पोस्टीरियर बेली का ओरिजिन था मेस्टॉइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड इट विल ऑल्सो गेट इंसर्टेड इनटू द पुली. जो इंटरमीडिएट टेंडन है वहाँ पे जाके जो फाइब्रस पुली फॉर्म हुई है हाइड बोन में, उसमें जाके इंसर्ट होगी. यहाँ पे ध्यान रखना जो आपकी डाइगैस्ट्रिक मसल है उसकी 2 बेलीज. एंटीरियर बेली जो होता है इट इज़ सप्लाइड बाय द माइलोहाइड नर्व टू माइलोहाइड. इट इज़ सप्लाइड बाय द नर्व टू माइलोहाइड. ये फर्स्ट आर्च की मसल है. द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इट इज़ अ मसल ऑफ योर सेकेंड फेरेंजियल आर्च, तो इट विल बी सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व. अब इनकी पोजिशन के अकॉर्डिंग इनके एक्शंस हैं. ऑब्वियसली खुद सोचो डाइगैस्ट्रिक फोसा से हायर्ड बोन तक, तो इसका एक्शन क्या होगा? इट विल डिप्रेस द मैंडिबल व्हेन द माउथ इज ओपन अगेंस्ट द रेजिस्टेंट. और ये अगर मैंडिबल को डिप्रेस करेगा तो हायर्ड को एलिवेट करेगा, मैंडिबल को डिप्रेस करेगा हायर्ड बोन को एलिवेट करेगा. ठीक है. सो दिस इज योर डाइगैस्ट्रिक मसल. सेकेंड वॉज योर स्टाइलोहाइड मसल. स्टाइलोहाइड मसल. फर्स्ट मस्कुलर प्लेन में 2 मसल्स, डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहाइड. एज वी डिस्कस्ड, कहाँ से ओरिजिन है इसका? स्टाइलोइड प्रोसेस. इसका इंसर्शन हायर्ड बोन. नर्व सप्लाई फेशियल नर्व, सेकेंड फेरेंजियल आर्च की मसल है. अब इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसकी प्लेस ओरिजिन इंसर्शन के अकॉर्डिंग, इसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग यू कैन से उसका एक्शन क्या होगा? इट विल पुल दी हायर्ड बोन. स्टाइलाइड प्रोसेस से ये जा रहा है हायर्ड बोन तक. लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है ना? एवरीवन इज लिसनिंग? ओके. हाँ, तो फर्स्ट मस्कुलर प्लेन की 2 मसल्स, स्टाइलाइड प्रोसेस से हायर्ड बोन तक अटैच है, तो इट विल पुल द हायर्ड बोन अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स टूवर्ड्स द स्टाइलाइड प्रोसेस. तो डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. सो 2 मसल्स ऑफ द फर्स्ट मस्कुलर प्लेन. सेकेंड इज योर माइलोहाइड मसल. सेकेंड मस्कुलर प्लेन में हमने कौन सी मसल देखी थी? माइलोहाइड. origin mylohyoid line of mandible, insertion into the body of hyoid bone. यहाँ उसके अलग अलग फाइबर्स हैं, यू शुड रिमेंबर जस्ट उसका origin and insertion. नर्व कौन सी थी? नर्व टू माइलोहाइड. अब इम्पॉर्टेंट है आपका जो इसका एक्शन है. ये हमेशा ध्यान रखना, जो आपका माइलोहाइड मसल का एक्शन होता है इट विल हेल्प इन टू दी फर्स्ट स्टेज ऑफ डीग्लूटेशन. फर्स्ट स्टेज ऑफ डीग्लूटेशन स्वेलोइंग की फर्स्ट स्टेज में इट विल हेल्प. दूसरा सेकेंड इज योर इट विल डिप्रेस द मैंडिबल. ये आपका बेसिकली फ्लोर ऑफ द माउथ, पूरा आपका फ्लोर ऑफ द माउथ और इस एंटीरियर पार्ट को फॉर्म करता है.
सो इसका फर्स्ट तो swallowing में हेल्प करेगा, सेकेंड इट विल डिप्रेस द मैंडिबल एंड एलिवेट द हायर्ड बोन. आपके मैंडिबल को डिप्रेस करेगा, हायर्ड बोन को एलिवेट करेगा. ठीक है. सो सेकेंड प्लेन में आपका माइलोहाइड मसल. थर्ड प्लेन में 3 मसल्स, जीनियोहाइड, स्टाइलोग्लॉसस एंड द हायोग्लॉसस. आपका कनेक्ट हो रहा है क्लासेस? वन सेक, रुको एक सेकंड. क्लियर हुआ? कनेक्टिविटी में एक्चुअली इश्यूज हैं. भैया इनको ना इशू हो रहा है, बच्चों को आवाज़ भी कट रही है अभी. हाँ, अब विजिबल हुआ है इनका. नेटवर्क का इशू है ना. हो गया ना अब कनेक्ट? इसमें एक्चुअली शायद ना माउस का भी इशू हो रहा है. वो पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है ना. हाँ. स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा. हाँ, 136 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है. स्टार्ट करूँ? एक्चुअली ये भी मूव नहीं हो रहा है. वो नहीं हो रहा है. नहीं, इसको एक बार चेक करिए. स्लाइड आगे पीछे नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट देखिए. यही है ना आपका? ये नहीं है? हाँ यही है. कौन
से स्लाइड पाई थी? वो मैं अरेंज कर लेती हूँ, वो मसल्स का था, ये ऊपर है वो सब। हाँ, एक चार्ट था ना, वहाँ से करवा रही थी इस वजह से। कीबोर्ड से भी हो जाएगा तो इससे भी हो जाएगा। should we start? Okay, so हमने क्या देखा? 4 muscular plates. First was your digastric muscle. Digastric muscle ये तो मेरे ख्याल से सबने सुन लिया था। उसकी 2 bellies, anterior belly, posterior belly, origin, insertion। इसकी नर्व सप्लाई हमेशा ध्यान रखना, एंटीरियर बेली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, तो इसकी नर्व सप्लाई है नर्व टू माइलोहाइड, ठीक है। सेकेंड इज योर पोस्टीरियर बेली इज फ्रॉम द सेकेंड फेरेंजियल आर्च, सो आपका इसका नर्व सप्लाई होगा फेशियल नर्व, ठीक। अब इसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग इट विल डिप्रेस द मैंडिबल एंड इट विल एलिवेट द हायर बोन। Second was your... Sorry, but some participants may be experiencing temporary audio issues. Our teams are working to resolve this as quickly as possible. Okay. Now again we should start the muscles we were discussing. Okay. Now again we should start the muscles. 4 planes what we discussed. फर्स्ट प्लेन में आपके 2 मसल्स बस, डाइगैस्ट्रिक एंड इज योर स्टाइलोहाइड मसल। डाइगैस्ट्रिक में 2 बेली थी, एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली, सेम उसका इंसर्शन। इसमें आपको डाइगैस्ट्रिक मसल में ध्यान रखना आपके नर्व सप्लाई, एंटीरियर बेली का नर्व टू माइलोहाइड, पोस्टीरियर बेली का फेशियल नर्व। सेकेंड वॉज योर स्टाइलोहाइड, स्टाइलाइड प्रोसेस टू दी हायर्ड बोन, ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायर्ड बोन, इसका नर्व सप्लाई फेशियल। सेम वे इट पुल्स द हायर्ड बोन अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। आपका सेकेंड प्लेन में ओनली 1 मसल, सेकेंड प्लेन में 1 मसल, दैट वाज योर माइलोहाइड। माइलोहाइड मसल बेसिकली आपका माइलोहाइड लाइन से उसका ओरिजिन था, इंसर्शन था हायर्ड बोन में। हमने क्या बोला? इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन में इट विल हेल्प टू एलिवेट द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड इट विल डिप्रेस द मैंडिबल एंड एलिवेट द हायर्ड बोन। बेसिकली ये सारे मसल्स का एक बेसिक, जो सुप्राहायर्ड मसल्स हैं उनका बेसिक एक्शन यही होता है। इट डिप्रेसेस द मैंडिबल अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट, इट विल डिप्रेस द मैंडिबल और इट विल एलिवेट द हायर्ड बोन। फिर थर्ड प्लेन में 3 मसल्स, जीनियोहायर्ड, हायोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस। ये तीनों मसल का सेम रहता है आपका एलिवेशन ऑफ द हायर्ड बोन एंड अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट, अगर वो मैंडिबल से अटैच है ये टंग से, उसको डिप्रेस करते हैं, ठीक है। सो दिस आर योर सुप्राहायर्ड मसल एंड द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, जो आपका कंप्राइज करेगा द 4 मस्कुलर प्लेन्स ऑफ द सबमैंडिबुलर रीजन। अब इस रीजन में हमने क्या देखा कि जब हमने स्किन, सुपरफिशियल फेशिया में था प्लेटिज्मा एंड द 2 नर्व्स, द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व और ग्रेट ऑरिकल, ये आपका सुपरफिशियल में आया। फिर हम डीप गए, डीप स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आपके मसल्स थे। मसल्स में 2, सुप्राहायर्ड मसल एंड द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, ये दोनों सारे यहाँ के मसल्स कंप्राइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन योर सब मैंडिबुलर गैंग्लिया, द सब मैंडिबुलर रीजन इज योर सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। जो आपका सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है एंड सबलिंगल बिल्कुल छोटा सा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड इस रीजन का।
आपका जो सब मैंडिबुलर है इट इज सेकेंड largest. First is your parotid, second is your submandibular gland. The submandibular gland, it is one of the three pairs of these paired salivary gland. This is large salivary gland. Almost इसकी size walnut से है, मतलब half of the size of the parotid gland. It is size of a walnut, which is present below and deep to the posterior half of the mandible. It is a mixed type of gland. It is a mixed type of gland, मतलब both mucus and serous, but predominantly serous. अब इसके secretions हम इसकी nerve supply में अलग से देखेंगे. अब देखो इसका पोजीशन, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल, डीप. आप फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी ये माइलोहाइड मसल है. माइलोहाइड मसल की हमने अटैचमेंट क्या बोली थी कि माइलोहाइड लाइन से ओरिजिन होगा एंड इंसर्शन होगा आपका हायर बोन पे. सो ये आपकी माइलोहाइड मसल को जब हमने फर्स्ट डायग्राम में देखो माइलोहाइड मसल की ओरिजिन है इंसर्शन हायर बोन से, तो हमने इसको मिड सेक्शन कट किया. सो यू कैन सी द प्लेसमेंट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो आपका inferiorly प्रेजेंट है. दिस इज योर सुपरफिशियल पार्ट. ऑब्वियसली इट इज़ आउटवर्ड्स, तो ये आपका सुपरफिशियल पार्ट है. डोंट गेट इट कंफ्यूज. हम इसके किस एस्पेक्ट से इस मैंडिबल इस डायग्राम को देख रहे हैं, हम इंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं. तो जो आपके साइड जो दिख रहा है, जो माइलोहाइड मसल के जो इंफीरियरली प्रेजेंट है वो उसका सुपरफिशियल पार्ट हुआ. और इसको वाइंड अप करते हुए जो इसके डीप में प्रेजेंट है, दिस इज योर डीप पार्ट. जो स्मॉल पार्ट है वो डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सुपरफिशियल और डीप पार्ट दे आर बोथ कनेक्टेड इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहाइड मसल. अब इसके डीप में ये तो प्रेजेंट है आपके सब मैंडिबुलर फोसा. जो फर्स्ट डायग्राम हमने मैंडिबल का देखा था तो उसमें क्या था, हमने देखा था कि माइलोहाइड लाइन के सुपीरियरली प्रेजेंट है, सुपीरियर एंटीरियरली प्रेजेंट है सब लिंगुअल फोसा और उसके इंफीरियरली है सब मैंडिबुलर फोसा. सो नाउ यू कैन सी कि इस माइलोहाइड मसल की कैसे इस फोसा के अलॉन्ग ये आपका ग्लैंड प्रेजेंट है. दिस इज योर सब मैंडिबुलर ग्लैंड. अब यहाँ पे फर्स्ट इज देखो इसके टू पार्ट्स. अब इसका अटैचमेंट सेकेंड डायग्राम में देखो, हम इसका सेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने किया तो आपको सेकेंड डायग्राम में दिखेगा कि माइलोहाइड मसल की अटैचमेंट है. हाउ द जे शेप्ड आपका जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज प्लेस्ड. आपका सुपरफिशियल पार्ट है और डीप पार्ट है एंड इट इज बोथ कंटिन्यूस इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहाइड मसल. जो आपका डीप पार्ट है इट इज लाइंग इन दी हायोग्लॉसस मसल, इट इज लाइंग ओवर दी हायोग्लॉसस मसल. और माइलोहाइड मसल के डीप में एक छोटा ग्लैंड और प्रेजेंट है, दैट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन दी सबलिंगुअल फोसा. सो दो ग्लैंड्स हैं आपके, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. नाउ विल कम टू द पार्ट्स ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. फर्स्ट इज योर सुपरफिशियल पार्ट, सेकेंड इज योर डीप पार्ट. Superficial part as you have seen is mylohyoid muscle के superficially it is present and deep part is present in the deep to the mylohyoid muscle in between mylohyoid and hyoglossus muscle. ठीक, and they both are continuous into the posterior border of the mylohyoid muscle. अब first हम discuss करेंगे जो इसका superficial part होता है. Superficial basically large part है as you can see and it fills the anterior part of digastric triangle. आपके digastric triangle का पूरा anterior part और माइलोहाइड लाइन के upwards ये पूरा फ्लोर ऑफ द माउथ यहाँ पे ये बिल्कुल posteriorly ये पूरा anterior part of the digastric triangle को fill करते हैं. अब सेम वे सुपरफिशियल पार्ट्स के दो एंड्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर 3 सरफेसेस. इम्पॉर्टेंट इज जो आपका एंटीरियर एंड है it extends up to the anterior belly of digastric. जो फर्स्ट मस्कुलर प्लेन का फर्स्ट मसल था digastric मसल, उसकी anterior belly, ठीक है, it is extended up to the anterior belly and posterior is extended up to the stylomandibular ligament. Stylomandibular ligament है, that ligaments separates the submandibular gland. Submandibular gland is present here, parotid gland is here. So this both are separated by the stylomandibular ligament.
अब फर्स्ट इसके कैप्सूल देखेंगे हम ग्लैंड के। नेक्स्ट आपका जब लेक्चर होगा वो डीप सर्वाइकल फेशिया में, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी ध्यान रखो यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया हायर्ड बोन से अटैच होती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है इट स्प्लिट्स इनटू 2 लैमेलास। 2 लैमेला इसकी डिवाइड होगी और वो इनक्लोज करेगी आपकी पूरी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड को। जो इन्फीरियर लैमिना, जो यू कैन कॉल इट सुपरफिशियल लैमिना जो है, इट विल कवर द सुपरफिशियल पार्ट एक्सटर्नली और इट विल अटैच टू द inferior border of the mandible। जो आपकी सेकेंड ये डीप लैमिना है वो डीप पार्ट को, एक्चुअली इसके इंफीरियर पार्ट को सुपरफिशियल पार्ट की कवर करते हुए माइलोहाइड लाइन में ये अटैच होती है। वैसे ही जैसे हमने किडनी में एक तरीके से देखा था ना कि इन्वेस्टिंग लेयर जो डीप फेशिया इट स्प्लिट्स इनटू 2 एंड कवर्स बोथ सुपरफिशियल पार्ट के आउटर और इनर पार्ट को कवर करती है। सो दिस इज योर कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। अब आ जाओ सुपरफिशियल पार्ट के रिलेशंस में। सुपरफिशियल पार्ट के रिलेशन में बेसिकली हम सबसे पहले, बिल्कुल अब शांत रहो, अब देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में आपके सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट होगा। फर्स्ट डायग्राम आपकी राइट साइड में देखो, इस डायग्राम में आपका फर्स्ट आउटर में क्या आ जाएगा, स्किन। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में क्या है, प्लेटिज्मा। फिर प्लेटिज्मा के वहाँ सुपरफिशियली जो वहाँ पे एक वेन प्रेजेंट होती है दैट इज योर फेशियल वेन। फिर वहाँ पे सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। सो दिस all things comprise it is related to the superficial surface of your superficial part of the submandibular gland। अब इसके लेटरल में देखो, जब हम लेटरली देखेंगे तो ग्लैंड है, मैंडिबल है, तो ग्लैंड और मैंडिबल के बीच में सबमैंडिबुलर फोसा ऑफ द मैंडिबल, मीडियल एक मसल है वहाँ पे अटैचमेंट जिसकी होती है मीडियल टेरेगॉइड मसल। इट इज़ अ मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मीडियल टेरेगॉइड मसल, और एक मेजर आर्टरी आपकी फेशियल आर्टरी। सो ये इसके लेटरल सरफेस से अटैच होता है, रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज योर उसके मीडियल सरफेस। ये डायग्राम इतना ज़्यादा कंफ्यूज उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब और अच्छे से अगर इसको देखोगे तो जो मीडियल सरफेस होता है, हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड को का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है उसके मीडियल सरफेस को वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पार्ट। इसको बहुत अच्छे से एकदम रटने की ज़रूरत नहीं, बट एटलीस्ट समझ लो कि आपका अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके 3 पार्ट्स हम मीडियली अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एंटीरियर पार्ट इज रिलेटेड टू योर माइलोहाइड मसल एंड द नर्व्स वेसल्स। जो आपका इंटरमीडिएट पार्ट है, इंटरमीडिएट पार्ट विल बी रिलेटेड टू द हायोग्लॉसस मसल्स एंड द नर्व्स। एंड जो आपका थर्ड पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियरली यहाँ उसके जो बाकी मसल्स रिलेटेड हैं, जैसे यू कैन सी इन द डायग्राम, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है उसमें कौन कौन से हैं, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, मसल ऑफ द मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, एंड यहाँ पे नर्व बेसिकली प्रेजेंट है, लिंगुअल नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड लिंगुअल आर्टरी। अगर ये आपको याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज सिर्फ समझने के लिए एक ओवर टोटल आप मीडियल सरफेस में स्ट्रक्चर्स आप बता सकते हो। तो आपके एंटीरियरली माइलोहाइड नर्व्स मसल्स एंड नर्व्स वेसल्स, इंटरमीडिएटली हायोग्लॉसस एंड पोस्टीरियरली बाकी मसल्स जो हैं, जो टंग की मसल्स स्टाइलोग्लॉसस, फेरिंग्स की मसल स्टाइलोफेरेंजियस, मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स एंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, ये सारे आपके रिलेशन में आते हैं सुपरफिशियल पार्ट के। नेक्स्ट कम्स योर डीप पार्ट। डीप पार्ट आपने जैसे देखा था बिल्कुल छोटा सा, जो माइलोहाइड और हायोग्लॉसस मसल, ये दोनों मसल के बीच में जो प्रेजेंट था, तो अगर वो बीच में प्रेजेंट है तो खुद सोचो उस जो डीप पार्ट है और पोस्टीरियरली कैसा वो। अब उसके रिलेशन में सबसे पहले देखो, हमने जो फर्स्ट डायग्राम देखा था, ये देखो आपका डीप पार्ट, जो डीप पार्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, ये माइलोहाइड मसल और हायोग्लॉसस मसल के बीच में है। हायोग्लॉसस मसल मीडियली है, माइलोहाइड मसल लेटरली है।
सो अब इसके रिलेशन में क्या किया जाएगा, मीडियली हायोग्लॉसस मसल, लेटरली माइलोहाइड, सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे जो है सुपीरियरली कौन सा क्या प्रेजेंट है, एक लिंगुअल नर्व है, लिंगुअल नर्व से रिलेटेड है आपका सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, और इन्फीरियरली रिलेटेड है आपका हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड हाइपोग्लॉसल नर्व से रिलेटेड उसके दो वेन्स जो होते हैं, वेनी कमिटेंस, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका डीप पार्ट होता है। नाउ कम्स दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, डक्ट। अब ऑब्वियसली सबमैंडिबुलर ग्लैंड है आपका, उसका सुपरफिशियल और डीप पार्ट। अब उसके सिक्रीशंस, इट ओपन्स इनटू दी ओरल कैविटी ऑब्वियसली। जो आपका सबमैंडिबुलर डक्ट है, ये फिर इट इज़ नोन एज योर वॉटसन्स डक्ट। जो वॉटसन्स डक्ट है, सबमैंडिबुलर डक्ट, बेसिकली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब इस डायग्राम में यू कैन सी सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल और डीप पार्ट है, और डीप पार्ट के एंटीरियर उससे ये इट इमर्जेस फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डीप पार्ट, वो इमर्ज आउट हो रहा है। एंड अब इस इमर्जिंग से फिर इट विल ओपन इनटू द, ये ओरल कैविटी में कहाँ पे ओपन होता है, सब लिंगुअल पैपिला, आपके टंग में। टंग का फ्रेनम जो प्रेजेंट है, टंग को आप अगर रेस करते हो तो यू कैन सी अ अटैचमेंट विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, दैट इज योर फ्रेनम ऑफ द टंग। सो फ्रेनम ऑफ द टंग के दोनों साइड पे ओपनिंग होती है, वहाँ पे एक पैपिला प्रेजेंट होता है, दैट इज योर सब लिंगुअल पैपिला, और वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है सब मैंडिबुलर डक्ट की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सब मैंडिबुलर डक्ट है, इतना समझ में आ गया कि डीप पार्ट के, इसका डीप पार्ट है उसके एंटीरियर से, अगर ये आपका डीप पार्ट है, डीप पार्ट के एंटीरियरली इसका डक्ट होगा 5 सेंटीमीटर और ओपन्स इनटू दी सबलिंगुअल फोसा, आपकी सबलिंगुअल पैपिला में ओपन होता है फ्रेनम के दोनों साइड पे। अब यहाँ जब इमर्ज आउट होता है, यहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू, सबसे पहले 2 नर्व्स यहाँ पे रिलेटेड होते हैं इससे, हाइपोग्लॉसल नर्व और लिंगुअल नर्व, और जहाँ पे इमर्ज आउट होता है वहाँ पे लिंगुअल नर्व इसको वाइंड अप करती है, ठीक है, और उसके आगे वो रिलेटेड होता है आपका हाइपोग्लॉसल नर्व से। सो दिस इज योर वॉटसन्स डक्ट which opens into the sublingual papilla. Yes, longest salivary duct, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंस की नस, ब्लड सप्लाई सिंपल सा है, उस एरिया में सबलिंगुअल और सबमेंटल आर्टरीज हैं, वेन वहाँ पे ड्रेन किस में करेगा, फेशियल वेन है और लिंगुअल वेन्स है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, और जुगलो सबसे पहले ये किस में ड्रेन करेगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, वो डायरेक्टली ड्रेन करते हैं जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। अब इसकी नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका सब मैंडिबुलर गैंग्लियंस, जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सब मैंडिबुलर जो आपका ग्लैंड है उसके 3 नर्व सप्लाई होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी। पहले बोला जाता था कि पैरासिम्पैथेटिक आपका सिक्रीटोमोटर है और सिंपैथेटिक इज योर वैसोमोटर, बट अभी इट इज़ क्लियर कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों आपके सिक्रीटोमोटर होते हैं, और सिंपैथेटिक वैसोमोटर भी होता है, ठीक है। अब सिक्रीटोमोटर, सबसे पहले अपन देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आपकी जो सप्लाई होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, अभी रुको, अभी हम इसका जो नर्व सप्लाई है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, हम सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ एक बार रिवाइज करेंगे। अभी बस सिंपल ध्यान रखना, 3 सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी, ठीक। सेंसरी होती है आपकी लिंगुअल नर्व से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट है, 3 पेयर्स ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें से जो स्मॉलेस्ट पेयर है वो है आपका सबलिंगुअल। लाई कहाँ करता है, सबलिंगुअल फोसा में, ऑलमोस्ट इट इज आलमंड शेप,
ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग बाय द सबमैंडिबुलर डक्ट। सबमैंडिबुलर डक्ट इसको बेस ऑफ द टंग से सेपरेट करती है सबलिंगुअल ग्लैंड को। अब इसकी ओपनिंग सबलिंगुअल फोल्ड में होती है, कुछ एक्चुअली 15 to 20 डक्ट्स ओपन होते हैं वहाँ पे, और फिर कुछ डक्ट डायरेक्टली ओपन होता है सबमैंडिबुलर डक्ट में, और कुछ ओपन होंगे आपकी ओरल कैविटी में। सो दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। सेम वे आपकी नर्व सप्लाई जैसे कि सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड की है, सेम इसकी होती है। ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ऑल इज ऑलमोस्ट सेम। अब नेक्स्ट हम पहले सबमैंडिबुलर गैंग्लियन डिस्कस करते हैं। यस, डक्ट ऑफ रिवेनस, जो आपके सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल डक्ट है, इसमें बार्थलिन और कॉन्का भी इंक्लूडेड होता है। चलो, नाउ विल स्टार्ट द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। Submandibular ganglion, basically it is a parasympathetic ganglion which serve as a relay center for the secretomotor fibers of the submandibular or sublingual. सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल दोनों सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीटोमोटर फाइबर्स का पाथवे है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। अब टोपोग्राफिकली अगर इसको देखें, इट इज़ रिलेटेड टू लोकेशन वाइज, पोजिशन वाइज इट इज़ रिलेटेड टू लिंगुअल नर्व, बट फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू फेशियल नर्व। हमेशा ध्यान रखना, टोपोग्राफिकली लिंगुअल नर्व एंड फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू फेशियल नर्व। अब इट इज़ अ पिन हेड साइज गैंग्लियन है जो कि हायोग्लॉसस मसल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इसके रिलेशंस रुको, चलो अब ये डायग्राम देखो। सबसे पहला वो दैट यू कैन सी कि वो हायोग्लॉसस मसल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट है, दो ट्विग्स हैं, एफरेंट और ईफरेंट। इसके रिलेशंस में रहता है लिंगुअल नर्व, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, हायोग्लॉसस मसल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड का बिलो और लेटरल में इसके डीप और सुपरफिशियल पार्ट रिलेटेड होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके 3 रूट्स होते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, सबसे पहला पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई इसका होता है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, यू कैन सी सेंटर में जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर एक जो सर्कुलर आपको गैंग्लियन दिख रहा है, दिस इज योर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। पहला हम इसका देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक फ्लो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो क्या होता है, गैंग्लियन है, गैंग्लियन के पहले जो फाइबर्स हैं दैट आर योर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, और फिर ये आके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स ब्रेन से जाके आके रिले करेंगे इस न्यूक्लियस, मतलब इस गैंग्लियन में। दिस विल बी जो इसको कनेक्ट करेगा ब्रेन को इस गैंग्लियन से, दिस आर योर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। इस गैंग्लियन से जहाँ पे भी रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो जाएगा वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो रिले कर रहे हैं सेंटर्स। सो अब जब हम इसके पैरासिम्पैथेटिक को देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक में फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी पॉन्स। पॉन्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इन पॉन्स, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर जो आपका फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की कॉर्डा, पहले वो फेशियल नर्व से जाएगा, फिर फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पनाई, कॉर्डा टिम्पनाई से रिले करता हुआ लिंगुअल नर्व से होते हुए वो रिले करता है आपके सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में। अब सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में ये रिले करेगा, दिस आर योर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। फिर इस गैंग्लियन से डायरेक्टली आपका सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर दोनों ग्लैंड्स को इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स रिले करते हैं। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक इस डायग्राम में, ठीक है। फिर हम देखेंगे सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में देखो T1 सेगमेंट जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका सिंपैथेटिक सप्लाई है। इसमें देखो ब्लू कलर से जो दिख रहा है तो T1 सेगमेंट से स्टार्ट होगा। ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है ये रिले करेंगे सीधा जाके सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, ठीक है। सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन ये आपके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियनिक है। अब इस गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाएंगे, वो जाके रिले करेंगे और वहाँ से ये आपके सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में, फिर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से होते हुए दे विल पास इनटू दी सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड।
अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे, ये जो फाइबर्स हैं वो फेशियल आर्टरी के अलोंग एक सिंपैथेटिक प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं, एक मेशवर्क, एक प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं फेशियल आर्टरी के अलोंग, और इससे वो जाके डिवाइड होके आपके दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। सो आपके दो हुए, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये दोनों आपके नर्व सप्लाई सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड दोनों का होता है ये, ठीक है। तो हमने जैसे देखा 3 रूट्स देखे हमने, ठीक है। पहला है पैरासिम्पैथेटिक, स्टार्ट किससे हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट हो रहा है सुपर पॉन्स में, सुपर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, फेशियल नर्व से कॉर्डा टिम्पेनाइज की ब्रांच, फिर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो रेड कलर के आपके पैरासिम्पैथेटिक है, फिर वो रिले करेगा दोनों ग्लैंड्स को। सेकेंड है आपका सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, T1 सेगमेंट से, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, फिर वहाँ से रिले करेगा फेशियल आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस फॉर्म करेगा, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस फॉर्म करके वो आपके दोनों ग्लैंड्स को रिले करेगा। अब हमने एक चीज़ बोली थी कि ये जो ग्लैंड्स में इसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिक्रीटोमोटर है, ये अकॉर्डिंग टू इसकी सप्लाई डिपेंड करती है। पैरासिम्पैथेटिक विल लीड टू द वाटरी सिक्रीशन एंड सिंपैथेटिक विल लीड टू द विस्कस सिक्रीशन, और सेंसरी सिक्रीशन इसकी बेसिकली लिंगुअल नर्व से आती है, ठीक है। सो ये आपका दोनों सबमैंडिबुलर गैंग्लियन का रिलेशन है, एंड सेम वे जो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के 3 रूट्स हैं वही आपके सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का नर्व सप्लाई है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड दी सेंसरी। क्लियर है? चलो अब हम क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं। फर्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कैल्कुलाई। एज कंपेयर टू पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के विस्कस सिक्रीशन के कारण यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैल्कुलाई फॉर्मेशन के। अब जब कभी भी ड्यूरिंग सर्जरी यू हैव टू एक्सरसाइज दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सरसाइज करना है तो आप एग्जैक्टली इसके मैंडिबल के इन्फीरियर लाइन में यू कांट गिव द इंसिजन, क्योंकि अगर आपने इन्फीरियर लाइन में डायरेक्टली इन्फीरियर बॉर्डर में इंसिजन दिया तो यू आर गोइंग टू इंजर, याद है सुपरफिशियल पोर्शन में आपने जैसे सुपरफिशियल पार्ट में स्किन रिमूव किया था तो कौन सी नर्व आई थी, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो वो नर्व इंजरी होगी। इस काइंड कभी भी अगर आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सरसाइज करना है, सो इन दैट केस आपको इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल से 4 सेंटीमीटर इंफीरियर जाके यू गिव द इंसिजन, ठीक है। स्वेलिंग्स ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट कैन बी एक्चुअली पैल्पेटेड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग्स हैं, यू कैन एक्चुअली सब मैंडिबुलर ग्लैंड को यू कैन पैल्पेट, यू कैन पैल्पेट। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को यू पुट पोस्टीरियर जो बॉडी ऑफ आपके रामस ऑफ द मैंडिबल के पोस्टीरियरली आप पुट करो यहाँ पे, और एक फिंगर को यू जस्ट एक्चुअली यहाँ पे आप बाहर से इसको पेल्पेट करो। सो ये इसका बाई मैनुअल पेल्पेशन होता है, ठीक है। यू कैन पेल्पेट दी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन केस अगर कोई इन्फेक्शन है, कार्सिनोमा है या नॉर्मल किसी इन्फेक्शन की वजह से सब मैंडिबुलर यहाँ पे लिम्फ नोड्स अगर स्वेल्ड अप होते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन पेल्पेट एंड फील दी लिम्फ नोड्स। अगर कैल्कुलाई है, कैल्कुलाई कैन ऑल्सो बी पेल्पेटेड इस पोजिशन में आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड का। नेक्स्ट इज योर रैनुला। रैनुला बेसिकली सिस्टिक स्वेलिंग होती है सबलिंगुअल ग्लैंड की। सबलिंगुअल ग्लैंड में जो जब स्वेलिंग होती है तो वो कहाँ पे दिखेगी, फ्लोर ऑफ द माउथ में, एंड इट इज सीन एज द बेली ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग की बेली की तरह दिखता है, तो दैट्स वाई इसका नाम है, सिस्टिक स्वेलिंग का नाम होता है रैनुला। ये सबलिंगुअल ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। सो दिस आर योर क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट आपके 3 ये ग्लैंड, ये जो स्लाइड है इसमें हमने कंपेयर किया है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, नियर द ईयर, एक्टोडर्मल ओरिजिन और लार्जेस्ट है, पिरामिडल इन शेप।
एज कम्पेयर टू सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर जो होता है आपका स्मॉलर टू द पैरोटिड, लार्जर टू द सबलिंगुअल। एंडोडर्मल ओरिजिन है, कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द मैंडिबल, जे शेप का होता है। सबलिंगुअल बिलो द टंग होता है। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड आलमंड शेप। अब इसके फाइबर्स का मेरे ख्याल से पैरोटिड आपका हो चुका है, तो पैरोटिड और सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल की आप इसकी नर्व सप्लाई जो सिक्रीटोमोटर नर्व सप्लाई है, यू कैन कंपेयर कि कैसे कैसे होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और आपकी सेंसरी, ये तीनों नर्व सप्लाईज की याद रखना। अब इसके नेचर ऑफ सिक्रीशन आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ सिक्रीशन में जैसे पैरोटिड वाज सीरस, बट सब मैंडिबुलर इज बोथ सीरस एंड म्यूकस, बट सबलिंगुअल इट इज म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड है आपका। डक्स की ओपनिंग देख लेना आप। बेसिकली पैरोटिड की तो ओपनिंग अपर सेकेंड मोलर में थी, वेस्टिबुल ओरल कैविटी में। ठीक है, जबकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड की कहाँ है, सबलिंगुअल पैपिला, फ्रेनम के साइड में। ठीक है, और सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, प्रॉपर सबलिंगुअल यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ में सबलिंगुअल वहाँ पे पैपिला है, उसके अलॉन्ग ही वहाँ पे होती है, फोल्ड के अलॉन्ग होती है एक्चुअली। ठीक है, दिस यू कैन सी सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ये सुपर सलाइवेटरी न्यूक्लियस कैसे उसका पूरा है। सुपर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से नर्वस इंटरमीडियस, फिर फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की ब्रांच कॉर्डा टिम्पनाई, वो लिंगुअल नर्व के साथ ज्वाइन करके सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में रिले करेगी। ये आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है। फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इट विल रिले टू दी सबमैंडिबुलर एंड दी सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट है ये आपके जो दो स्लाइड्स हैं, लास्ट के दो स्लाइड्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। सिंपल सा है, जैसे हमने फर्स्ट इसमें ब्रांचेस देखी थी, 4 ब्रांचेस, 4 मस्कुलर प्लेन्स हमने देखे थे ना, ये उन्हीं प्लेन्स को बता रहे हैं, क्योंकि दैट मसल्स जो आपके 4 मस्कुलर प्लेन है दैट इज़ नॉट डिवाइडेड अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ मसल या मसल्स के किसी क्लासिफिकेशन के बेसिस नहीं है, वो किसके बेसिस पे है, सर्जिकल प्लेन्स के बेसिस पे। जैसे जैसे आप ओपनिंग करोगे तो सर्जिकल प्लेन्स आपको अलग 4 प्लेन्स में मसल्स मिलेंगे, उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो हमने तो सिर्फ मसल्स देखी थी, तो उस मसल के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स जो न्यूरोवास्कुलर बंडल जो रिलेटेड होगा, ग्लैंड्स रिलेटेड है, तो ये उनका डायग्राम है। इफ़ यू आर गेटिंग इट इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मसल को आप देखते जाओ इसमें। तो फर्स्ट अगर डायग्राम में आप देखोगे तो फर्स्ट डायग्राम में हमारे 2 मसल्स थे, कौन से थे फर्स्ट मस्कुलर प्लेन में मसल, डाइगैस्ट्रिक एंड दी स्टाइलोहायोइड। फर्स्ट इज योर डाइगैस्ट्रिक मसल, आप देख सकते हो, इसके साथ आपकी स्टाइलोहाइड मसल, ये पहला प्लेन है मस्कुलर प्लेन, सर्जिकल प्लेन जो आपको दिखेगा। ठीक, इसके साथ फिर आएगा आपका सेकेंड मस्कुलर प्लेन। सेकेंड मस्कुलर प्लेन में सिर्फ एक मसल थी, माइलोहाइड मसल, यू कैन सी द माइलोहाइड मसल। अब माइलोहाइड मसल से रिलेटेड यहाँ पे 2 नर्व्स आपको दिख रहे हैं, द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व, लिंगुअल आर्टरी आ रही है, और माइलोहाइड नर्व्स और वेसल्स रिलेटेड है। आपकी थर्ड जो है आपका, जो आपका थर्ड प्लेन है, थर्ड प्लेन में कौन कौन से मसल्स थे आपके, बेसिकली ये आपके हायोग्लॉसस मसल का रिलेशन था, जीनियोहायोइड, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, ये 3 मसल फॉर्म की हैं आपकी थर्ड सर्जिकल प्लेन। लेकिन इस थर्ड सर्जिकल प्लेन में ध्यान दो कि इसके सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट है। सेकेंड और थर्ड के बीच में यहाँ पे आपका प्रेजेंट है सबमैंडिबुलर आपका ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, 2 नर्व्स हैं, लिंगुअल नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व है। लिंगुअल नर्व से रिलेटेड आपका सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है। ठीक है, फिर आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है तो सबमैंडिबुलर डक्ट है, फिर वहाँ पे सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड भी है, ये आपकी थर्ड मस्कुलर प्लेन के सुपरफिशियली प्रेजेंट है। फिर आएगा आपका लास्ट जो है वो फोर्थ मस्कुलर प्लेन, दैट इज योर बेसिकली जीनियोग्लॉसस मसल, जीनियोग्लॉसस मसल और एक सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स, ये फोर्थ आपका प्लेन जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेशियल आर्टरी, आप इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दोनों ब्रांचेस दिख रही हैं, एंड यू कैन सी द लिंगुअल आर्टरी और उसके पूरे डिविजन्स कैसे वो डिवाइड होके सारा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आए तो इट्स वेल एंड गुड, वरना इस डायग्राम में आप सिर्फ मसल्स पे कंसंट्रेट करना। तो 4 आपको सर्जिकल प्लेन्स इसमें समझ में आएंगे।
सो एक बार रिवाइज करें एवरीवन। चलो हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट, सब मैंडिबुलर रीजन है कौन सा ये रीजन? मैंडिबल के माइलोहाइड लाइन और इंफीरियरली हायर्ड बोन, ये दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है दैट इज योर सब मैंडिबुलर रीजन। सुपरफिशियली हम देखेंगे तो क्या आएगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में क्या आता है? आपका प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा और दो मसल्स, सॉरी दो नर्व्स। कौन सी दो नर्व्स थी आपकी बेसिकली इसमें? द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और दूसरा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, तो ये आपके सुपरफिशियल रिलेशन में था। उसके बाद आएंगे हम डीप रिलेशन में। डीप रिलेशन में सबसे पहले मसल्स, मसल्स के बाद ग्लैंड है आपका कौन सा? सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। आपका गैंग्लियन कौन सा है? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो ये तीन चीज़ें इसके साथ याद रखना। इसके साथ में रिलेटेड इसका वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। ठीक है, वो सब आपके रिलेटेड टॉपिक्स में सब डिस्कस होगा। तो सबसे पहला आएगा आपके मसल्स। मसल्स को फॉर स्टडी सर्जिकल प्ले उसके बेसिस पे सर्जरी, उसके बेसिस पे सर्जिकल प्लेन्स हैं। 4 प्लेन्स हैं मसल की। दोनों मसल्स इसमें इंक्लूड होती है, सुप्रा हायर्ड और एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। फर्स्ट इज योर सुप्रा। यहाँ पे पहले 4 मस्कुलर प्लेन्स देखो। पहला मस्कुलर प्लेन मसल कौन सी है? डाइगैस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहाइड। 2 मसल्स आएंगी, डाइगैस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहाइड मसल। सेकेंड मस्कुलर प्लेन में ओनली 1 मसल इज देयर, माइलोहाइड 1 मसल, माइलोहाइड मसल। थर्ड मस्कुलर प्लेन में 3 मसल, जीनियोहाइड, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस। और फोर्थ मस्कुलर प्लेन में आपका आएगा जीनियोग्लॉसस और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स। अब इस मस्कुलर प्लेन को आप जो लास्ट की दोनों स्लाइड्स है उससे कंपेयर कर सकते हो। वो आपको सिर्फ मसल्स को अगर आप देखोगे तो ये चारों प्लेन्स आपको क्लियर होंगी कि कैसे कैसे वो सारे मसल्स प्रेजेंट हैं आपके। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इज योर डाइगैस्ट्रिक मसल। बिल्कुल ध्यान रखो, 2 बेली डाइगैस्ट्रिक मसल, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। एंटीरियर बेली इसका फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, तो नर्व कौन सी सप्लाई? नर्व टू माइलोहाइड। पोस्टीरियर बेली सेकेंड फेरेंजियल आर्च, तो नर्व सप्लाई इसकी फेशियल नर्व। इसका रिलेशन याद रखना, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स और वेसल्स रिलेटेड होते हैं। 10th, 11th और 12th 3 क्रेनियल नर्व इससे रिलेटेड है। वेन कौन सी है? इंटरनल जुगुलर वेन। और वेसल्स कौन से हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। सेकेंड है आपके स्टाइलोहायर्ड मसल, ऑब्वियसली स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायर्ड बोन तक। इसको आप याद रख सकते हो, 4 मस्कुलर प्लेन है, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2। फर्स्ट प्लेन में आपका आएगा 2 मसल, डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहाइड। सेकेंड प्लेन में आपका सिर्फ 1 मसल, माइलोहाइड। थर्ड में आपका आएगा ये जीनियोहाइड, स्टाइलोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस। 2 मसल टंग की, 1 मसल आपकी सुप्राहाइड मसल। ठीक, और लास्ट में आपका जो सेफ्टी मसल ऑफ द टंग है, जीनियोग्लॉसस मसल, वो आएगा आपका जीनियोग्लॉसस मसल और एक छोटा सा मसल सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स। ठीक है, नाउ कम्स द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसका बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ द पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड। 2 पार्ट होता है, सुपरफिशियल और डीप। आपकी मसल है, ठीक है, आपकी मसल है माइलोहाइड मसल एंड हाउ इट इज़ प्लेस्ड। ये आपका सुपरफिशियल पार्ट, ये आपका डीप पार्ट। तो सुपरफिशियली इट इज़ प्रेजेंट, सुपरफिशियल पार्ट, ये आपका डीप पार्ट है। और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहाइड मसल से ये दोनों कनेक्टेड होते हैं दिस वे। सो दिस इज योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और डीप से यहाँ पे एक छोटा ग्लैंड एक और है प्रेजेंट, दैट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसके रिलेशंस देख लेना। कैप्सूल है, इन्वेस्टिंग लेयर, डीप फेशिया, इट विल डिवाइड इनटू द 2 सुपरफिशियल पार्ट में आउटर साइड और इनर साइड, ये इसको कवर करता है 2 लैमिनास के फॉर्म में।
फिर इसका सिंपल सा है, रिलेशंस बहुत सिंपल है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो सुपरफिशियल में क्या होगा, स्किन, सुपरफिशियल फ्लेशिया, प्लैटिज्मा, वेसल्स वहाँ पे है, उसमें फेशियल वेन और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। लेटरल सरफेस में सिर्फ सिंपल सा है, लेटरली क्या है, मैंडिबल है। मैंडिबल से कौन सी यहाँ पे मसल अटैच है, मीडियल टेरेगॉइड, और एक आर्टरी है आपकी फेशियल आर्टरी। मीडियल सरफेस अगर ध्यान रखता है तो इट्स वेल एंड गुड, वरना ध्यान रखना माइलोहेड मसल, वेसल्स एंड नर्व, हायोग्लॉसस मसल एंड नर्व, और बाकी आपके जो फेरिंग्स की मसल है और टंग की मसल्स है वो लाई करती है। डीप पार्ट बिल्कुल छोटा सा, उसके एंटीरियर पार्ट से निकलता है आपका सबमैंडिबुलर डक्ट। ये सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन किस में होगा, आपका सबलिंगुअल पैपिला के दोनों साइड्स में ओपनिंग होगी इसकी, वाटसन्स डक्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है वो है वही सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेटेड जबकि नर्व सप्लाई है सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड की। 3 पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड उसकी सेंसरी। सेंसरी छोड़ दो लिंगुअल नर्व से। पैरासिम्पैथेटिक रेड वाली ध्यान रखना, पॉन्स के सुपीरियर सर्विस सलाइवेटरी, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ओके चलो, तो पैरासिम्पैथेटिक में हमने क्या देखा था, इस डायग्राम में देखो पॉन्स से स्टार्ट होगा। पॉन्स का सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, फेशियल नर्व से कॉर्डा टिम्पनाई उसकी ब्रांच जो रेड वाली, उसको ट्रेस करो। कॉर्डा टिम्पनाई से लिंगुअल नर्व मिली और फिर वो जाके ओपनिंग होगी आपकी, रिले करेगी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में। फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड से वो जाके दोनों ग्लैंड्स को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिले करेगी। ये आपका पैरासिम्पैथेटिक हुआ। सिंपैथेटिक ब्लू वाली, इसको ट्रेस करो, T1 स्पाइनल सेगमेंट से सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, फिर वो ओपन होगी सिंपैथेटिक वो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से होते हुए दोनों ग्लैंड्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो फेशियल आर्टरी के अलोंग वहाँ पे सिंपैथेटिक प्लेक्सस फॉर्म करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन और उसके रिलेटेड आपके पूरे इसके रूट इज़ व्हाट, जो आपकी ग्लैंड्स की नर्व सप्लाई है। ठीक, सो टुडेज लेक्चर समझ में आया सबमैंडिबुलर, ये किसी को कुछ डाउट, एनीवन? सिंपल है, उसके मसल्स याद रखना, 4 प्लेन्स में मसल, 2 आपके मेजर ग्लैंड्स हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ध्यान रखना, सुपरफिशियल और डीप पार्ट, उसका डक्ट है। नर्व सप्लाई आप अगर ग्लैंड की देख रहे हो तो इट इज़ रिलेटेड टू योर जो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के 3 रूट्स हैं उससे रिलेटेड है। समझ में आया सबको? डक्स के रिलेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है एज सच, ठीक है। डक्स के रिलेशन आपको उतने ज़्यादा नहीं देखने, आपको ग्लैंड का देखना है। उसमें भी सुपरफिशियल जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जो सुपरफिशियल पार्ट है उसके रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। टोपोग्राफिकली मतलब उसकी पोजीशन, लोकेशन वाइज वो किससे रिलेटेड है, वो दिखा ना कि लिंगुअल नर्व से रिलेटेड है, बट फंक्शनली उसमें कौन सा सेंटर्स कहाँ से नर्व से आ रहा है, फेशियल नर्व से रिले कर रहे हैं। सो आपका वो फंक्शनली फेशियल नर्व से रिलेटेड है, बट पोजीशन वाइज इट इज़ रिलेटेड टू योर लिंगुअल नर्व। तो टोपोग्राफिक। लास्ट 2 स्लाइड्स को आपको बिल्कुल भी अगर समझ में आ तो इट्स वेल एंड गुड। उसमें सिर्फ ये देखना है, लास्ट जो 2 स्लाइड्स हैं सर्जिकल प्लेन्स की किस तरीके से हर एक प्लेन में एक एक मसल, जो हमने 4 प्लेन्स देखे मस्कुलर प्लेन्स, वो मसल्स कैसे उसमें अरेंज हैं वो सिर्फ उसमें आपको कंसिडर करना है। अगर समझ में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 प्लेन्स जो आपके मस्कुलर प्लेन्स हैं उन्हीं का वो अरेंजमेंट है, साथ में वहाँ पे जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। थर्ड में जो ध्यान रखना वो बेसिकली हायोग्लॉसस मसल का ही रिलेशन आपको वहाँ पे दिख रहा है, जो आपका सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड, डक्ट्स और नर्व्स हैं।
Any doubt, anyone?